Welcome back, guys, to the third day of 10 days of code. As we have learned yesterday, we have explored some of the React hooks and the Solidity syntax that we require for this project. Uh, this was the change we have made yesterday, uh, Z and Y, the use state hook. We have tested that, and use. We have also tested the use effect hook here. Okay, today we will be learning now how to connect Solidity and the React frontend. Suppose we are implementing a function in Solidity backend and we want to access it in the frontend. For example, we are creating a new account that is for our bank purpose. We will create an account on the press of a button from the front end, and that function will be passed in the backend, and we will display the account in the front end. That will be today's first part of homework. And today we will show some basic functions of how you can actually do this, so that you get an intuition of how to get started with our project, and how you can yourself create a function that works such. So this was the code which we had commented yesterday, right? I told you that we wouldn't be requiring this for yesterday's class because this was code related to fetching the contract and using it. Contract is basically the Solidity code which we have written. When it gets compiled, it gets compiled into a JSON file. Okay, I will explain it to you step by step. So as I've explained to you yesterday, here in this sol folder, this contract is getting compiled by this code, right? This migration code. When you run truffle migrate reset in your terminal, this code is getting compiled using this code. This is a small snippet. Using this code is getting compiled, and there is a folder in your client. If you can see, there is a folder called as uh, one second. Yes, there is a folder inside your source folder in your client called as contracts. So when you compile the Solidity file, the script file, there is a JSON file generated here. This JSON file, see, the Solidity file was simple storage.sol, right? There is a corresponding JSON file generated for every contract you compile here. This would be the JSON file. If you can check, even in your file, in your folder, this is the format of the JSON file. Now, how we will access this JSON file on the front end is, you might have heard about APIs, right? APIs is application programming interfaces. So the full form of API is, it is just used to communicate between like various parts of the application. And there are various APIs. Basically, it is a collection of all the data. There are APIs for hotel data. Like there are a lot of hotel information which are present in an API, and you can access that API in your front end. This generally occurs in JavaScript. You can even explore more about an API, but basically how you access data on the front end is using an API. You fetch that API and you extract details from the API, whatever details you want. Let it be a function or let it be anything. In this case, you can access functions, but in general, APIs only provide you data when you access them in the front end. You fetch an API, and that API provides you with data. Cool. Uh, so let us continue. Now I have just changed this code to the function based code, as I have already told you from class based code. We will provide you this change syntax in today's module. Don't worry. And yesterday we coded this React part for demo purposes. I'm just commenting it out and removing for now. And this button, like as we have removed the set name and name, we need to also remove these two buttons and all these parts. Cool. And last one is for our application to run. Okay, now let us go to the React application. तो ये हमारा React application है, basic template है, boilerplate है, हम इसको कुछ change नहीं किया है. And as you guys have already installed your MetaMask account,
उसके पहले हम लोग यहाँ पे 3 जगह पे कंसोल लॉग कर रहे हैं टू चेक कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था ना कि वी आर सेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वेब3. सो वी आर चेकिंग इफ दिस 3 आर नॉट अनडिफाइंड एंड देन वी आर जस्ट लॉगिंग इट आउट ताकि आप देख सको कि व्हाट इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन द अकाउंट एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन वेब3 and how you can actually use the methods that are present in the contract. Okay, so as you guys have already installed MetaMask in your browser and also installed Ganache, this is Ganache. There are a lot of accounts in this Ganache. You might have seen 100 either. By default every account में आ जाता है Ganache में. You need to import one of these accounts and put it in your MetaMask. वो कैसे कर सकते हैं? So there's a method for that. Here you need to go to MetaMask. You need to click on import account and you need to click select the private key which is present in Ganache here. This is the private key and you need to go select this private key and import it here. 1 second. Yep, import it. Okay, that doesn't work, I guess. Okay, leave that. There's another way. You need to go to this thing, the accounts thing, and you need to like select a custom RPC. You need to create a custom network like for your application. तो यहाँ पे हम लोग इस नेटवर्क का नाम टू डू लिस्ट दे देंगे बिकॉज टूडेज एक्सरसाइज विल बी टू डू लिस्ट फॉर यू गाइस, सिंपल टू डू लिस्ट. And this RPC is the same thing that is present in your Ganache. I'll just show you. 1337 here chain ID is predefined. थोड़े chain IDs like are which are available to connect. These chain IDs you can use it. मतलब ये specific होते हैं थोड़े. You can अंदर ये 1337 you can use it. There's no issue in this. And when you save it, see the 100 ether is shown, right? ये Ganache का ये जो RPC server का URL है, you need to connect it to that URL in MetaMask. And the 100 ethers, 1 second, this 100 ether you can see the account name as 0x95 something something, and let's see which one is that. See it is this one, 0x95ff something like that. So as you can see, when we have console logged it, this is the account and the account connected to our MetaMask, that was 0x95 something, and it has 100 ether, and that was one of the line. This is the web, this is the web, this is the contract, as this is the contract on present on line 56, and this is the web3. web3 मतलब जो मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देर इज समथिंग नोन एज मेथड्स. ओके, so you can use these methods to access everything present in that contract or solidity file. Money, you can access the variables present in that, public variables that are visible, you can access those, and you can also access the functions. For example, यहाँ पे get और set देख सकते हो. तो ये जो boilerplate कोड था इसमें दो functions थे ना, get और set जो भी. So that's why you are able to access those two functions also in the contract. So that was the basic structure of the whole project, how you will be building. Now let us actually build something meaningful so that you can understand better. Firstly, let us go to this simple storage dot and let us just change this naming. It looks weird, right? Simple storage something like this. Let us change this to to-do list for now. This is to-do list, and let us also remove these things. Let us remove these things, and let us go to this deploy and also change it everywhere to to-do list. There's a thing called this thing in Solidity that you need to name all the things, all the contract names are similar. So let us name it as to-do list, and let us now once compile this. I'll just compile that. For compiling, and you know, right, this the command is simple. It is truffle migrate reset, meaning you are migrating this contract again and you are deploying it to the blockchain. Cool. Yeah, it's taking a while. Cool, that's done. This is an empty contract, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है. तो हम लोग जाएंगे तो भी अगर अभी, हाँ, एक और चीज़,
यहाँ पे देख सकते हो आप, जस्ट अभी मैंने माइग्रेट किया था, यहाँ पे to do list डॉट जेसन आ गया था. So that is how with the structure which I have shown before, that a JSON file is created and you access this JSON file and use it in the front end. We can delete this simple storage.json, but we need to be careful. If you delete this, you also need to change everything everywhere where you have used simple storage to contract. यहाँ पे हम लोग को बदलना पड़ेगा इसको और मेक उसको बनाना पड़ेगा टू डू लिस्ट, because now our new JSON file is to do list.json, right? So that was one place where we used it. हाँ, इसको बदल सकते हैं, इसको भी to do list या कुछ भी, इसको कुछ भी नेम कर सकते हैं, but let's name it as to do list for simplicity, because why not, why to complicate things. तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक जगह पे to do list बनाना है इसको. Control D is the shortcut, or Command D is the shortcut for Mac. Control D is the shortcut for Windows if you want to select two things and change it at once. To-do list and to-do list.abi, ABI to-do list. I guess those were the changes. Let's check in the React browser. अगर कुछ problem है तो वहाँ पे दिख जाएगा. No, I think so. It is successfully compiling. Yes. Okay, this is just a small error because we have not used this anywhere, that's why it is showing an error. Let's just comment it for now. So हाँ, we have successfully changed the naming, and हम लोगों ने देखा था जैसे हम लोगों ने माइग्रेट किया था, बल्कि इसको भी चेंज कर देंगे. टू डू लिस्ट, that's all. हाँ, ये जो है इनिशियल माइग्रेशन है, ये एक माइग्रेशन का प्री बिल्ट है. ये चाहिए तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. एंड इन सॉलिडिटी यू नीड टू मेंशन द नंबर इन द ऑर्डर विच दे आर गेटिंग माइग्रेटेड. सो फर्स्ट ये माइग्रेशन जो सॉल्व जो है इनिशियल माइग्रेशन ये हो जाता है, देन इसके बाद हमारा सेकेंड वाला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है वो होता है. तो आप ये यहाँ पे टर्मिनल में भी या का जो पावरशेल का टर्मिनल है, जब आप माइग्रेट करते हो, लेट्स फॉर एग्जाम्पल माइग्रेट इट वंस अगेन. So you can see that there will be two migrations, two deployments. One is the initial, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो migrations दिखा रहा है. One is the initial deployment that has already come with the boilerplate, और second वाला जो हम लोग अभी बना रहे हैं वो होगा. Now let us create a simple, एकदम simple सा to do list बनाएंगे और उसको front end में access कर देंगे. Yesterday we have seen that there is a thing known as uint variable normally. फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक यूएंट वेरिएबल डिफाइन कर देंगे काउंट, ठीक है, और इसको 0 ये कर देंगे, इनिशियलाइज 0 कर देंगे. नाउ और एक, हाँ yesterday I think so you didn't explore this thing. There is a thing known as mapping. Okay, मैपिंग में क्या करते हैं, मैपिंग में you can map from one key, this is a key and this is the value, you can map it from like key to like वैल्यू. ओके, यहाँ पे हम बाइट्स 32 या कुछ भी दूसरा टाइप भी दे सकते हैं. माने कैसे मैप होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग तो एरे में लिखते थे ना, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर वाइज 1 आई एम शुभम, मेरा नेम है, 2 अपूर्वा, ऐसे लाइक वी आर लाइक जस्ट प्रिंटिंग दिस थिंग्स, राइट. दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू. ऐसे ही हम लोग मैपिंग भी कर सकते हैं. एट दिस मतलब एट दिस की ये प्रेजेंट है वैल्यू, बाइट्स 32 मतलब स्ट्रिंग है, क्योंकि तो हम बाइट्स 32 यूज़ कर रहे हैं. We can even use a string here, but in general ऐसा मैप करते हैं. यहाँ पे anything could be present, यहाँ पे a different यूनिक डेटा टाइप भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, और वो स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं. वही हम लोग देखने वाले हैं अभी. ओके कूल. तो हाँ, तो जस्ट लेट अस क्रिएट अ स्ट्रक्चर फर्स्ट. ओके, लेट अस क्रिएट अ स्ट्रक्ट टू डू, और इस स्ट्रक्ट के अंदर bytes 32 info and uint एक serial number. बस ये दो चीज़ दे देंगे अभी के लिए. लेट्स कीप इट रियली सिंपल गाइस. तो आप इसको चाहिए तो जितना चाहिए उतना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बट हम लोग आर मेन एम इज टू कीप इट सिंपल एंड एक्सप्लेन द बेसिक सो दैट यू कैन एक्सप्लोर. तो यहाँ पे हम लोग ये मैपिंग कर रहे हैं फ्रॉम यूएंट विच इज़ अ नंबर, एनी नंबर, टू अ टू डू टाइप स्ट्रक्ट. ओके,
और हम इस मैपिंग का नाम दे रहे हैं टू डूज। ओके, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे नाम, आपकी मर्जी है, बट हम लोग इसको टू डूज दे रहे हैं because it's a to-do list and we'll map it as name as to-dos. Next we will create a function जो फ्रंट एंड से हम लोग एक्सेस करेंगे, बटन क्लिक होने पर एक नया टू डू ऐड कर देगा इस लिस्ट को। तो हाउ विल वी डू दैट? ओके, नाउ लेट अस क्रिएट अ फंक्शन add to do which is a public function एंड हम इसको पेएबल नॉन पेएबल का कुछ सीन नहीं है यहाँ पे, कुछ ईथर वीथर का एक्सेप्टिंग है नहीं, बट रहने दे, सो वो रहने दे सकते हैं। तो ये ऐड टू डू एक इनपुट लेगा, दैट वुड बी अ बाइट्स 32 इनपुट एंड दैट वुड बी द नेम, दैट वुड बी द इन्फो, सॉरी नॉट नेम, इन्फो, जो भी हम लोग टू डू में डालना चाहते हैं वो लिस्ट आइटम को, तो वो इन्फो इनपुट लेगा। Just like any other function which takes input, this takes an input. Now how do we create this function? Let's थोड़ा सा लॉजिक सोचते हैं। हर बार ये जब फंक्शन पास होगा ये काउंट इंक्रीज होगा। ओके, ये काउंट ये हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पे, तो ये हर बार ये दिस काउंट डजंट चेंज, मतलब until and unless you migrate it again, ये काउंट उतना ही रहता है। So let's just increment this count every time this function is passed and let us add a to do at the count, current count, मतलब अभी 0 है ना, तो 1 इंडेक्स पे हम लोग एक नया टू डू ऐड कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। टू डूज एंड काउंट, करंट काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग अ न्यू टू डू, राइट? सो लेट अस डू इट एज लाइक दिस, टू डू, दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्ट, this is the name of the struct and we will be passing two things inside this struct. One is the info, so as we have passed info here, let us just pass it back here, and the other one is the serial number which is the count itself, so let us just pass the count. So yeah, that's it, and yep, that's it. I guess that is enough for this basic functionality. You can migrate this to check if there are any errors and test it in the Truffle console. Let me just show it to you. Truffle migrate reset. We need to reset it every time we want to create some new functionality. As I told you that Solidity is not mutable. Cool. So वो हो गया। Truffle console में चेक किया जाए कि चल रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। Truffle console. Yep. var instance या कुछ भी var x भी ले सकते हैं, सिंप्लिसिटी। var x इज इक्वल टू await इंस्टेंस। हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हर जगह यूज किया जाता है, बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है इंस्टेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंस। सो इट्स, यू कैन यूज एनी अदर वर्ड फॉर दैट। सो var await is equal to to-do list. This is the name of the contract, to-do list dot deployed, मतलब जो contract हम लोग deploy किए, we are checking that and we are putting brackets at the end. Now x दबाएंगे तो ये पूरा contract का information आएगा। Cool. Now what we need to do is first check x के अंदर का count को access करेंगे, ठीक है? await x dot count. हम लोग वेरिएबल्स को भी एक्सेस करने के लिए वाई आर वी पुटिंग ब्रैकेट्स इज दैट we need to put the brackets first because this is the syntax here. We just can't access it directly by putting count. Even for functions और variables दोनों के लिए हम लोग brackets यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बिग नंबर में आ रहा है, हर एक चीज़ को बिग नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट हम लोग को इसको चाहिए तो वी कैन इवन कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल नंबर। फॉर दैट यस, ऐसा कर सकते हैं। इस x को हम लोग एक दूसरे इसमें असाइन कर देंगे। var x is equal to await x dot count, var y is equal to await x dot count, and then y को हम लोग नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द फंक्शन, बेसिक फंक्शन टू कन्वर्ट बिग नंबर टू नॉर्मल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया है कि द काउंट इज 0 करंटली। ओके, देन नाउ वी विल पास दिस add to do फंक्शन और उसमें हम लोग कुछ इन्फो रैंडम डाल के इन्फो विल पास इट। ओके, नाउ हाँ, await x dot add to do
और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ भी, हाँ, कंप्लीट द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग ऐड टू डू में एक बाइट्स 32 का ये लिखा है, दिस इज द ओनली इनपुट दैट इज टेकिंग, सो what is the error, bytes 32 value complete the project, invalid bytes 32 वैल्यू, यहाँ पे रीज़न भी दिख गया, invalid bytes 32 वैल्यू। कूल, हम लोग इसको ये ब्रैकेट्स को निकाल के चेक करते हैं, nope, so I guess let's use string type, bytes 32 is not working for us, you can check it like this also guys। हम लोग को ट्रफल के कंसोल के बाहर से आने के लिए कंट्रोल सी 2 बार दबा सकते हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं तो कंट्रोल डी एक बार दबाएंगे तो भी बाहर आ जाएंगे। लेट्स यूज अ स्ट्रिंग हियर गाइस, बाइट्स 32 का कुछ इशू आ रहा है, स्ट्रिंग यूज कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ओके। नाउ हम लोग फिर से ट्रफल माइग्रेट रिसेट करना पड़ेगा एज वी हैव चेंज समथिंग, लेट्स टेस्ट इट अगेन। हाँ वही, ये देख सकते हो आप लोग, ये आपको दिख रहा होगा कल का सेम जैसे अपूर्वा ने बताया था, वी नीड टू यूज अ मेमोरी पैरामीटर व्हेनेवर वी आर डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, सो लेट अस डिक्लेयर अ मेमोरी और स्टोरेज पैरामीटर मेमोरी, फिर से करके देखते हैं, इस बार हो जाना चाहिए, सही हो गया है, क्लियरिंग इट। नाउ लेट अस एक्सेस द ट्रफल कंसोल, सही है। नाउ अवेट, नहीं सॉरी, var x is equal to await to do list dot deployed, ओके, फिर से ये आ जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट, सही है। नाउ हम लोग को क्या करना है, वो टू डू काउंट को, काउंट वैसे भी 0 रहेगा, लेट्स पास द फंक्शन राइट, await x dot add to do, we are accessing this function add to do present in this x instance, right, this contract, right, so we are accessing it by putting a dot, okay, anything you can access by putting a dot, like जो भी वेरिएबल वगैरह भी है, और ये add to do के अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल रहे, complete the project, let's check, yes 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 yes, ये फंक्शन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, एज आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वगैरह 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 भी आ गया। अभी हम लोग फिर से एक बार काउंट चेक कर लेंगे, और वो मैपिंग में डाला है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं कि ये टू डूज का ये काउंट के नंबर पे अभी ये जब हम लोग एक्सेस कर रहे ये प्रिंट होना चाहिए, वो भी हम लोग देखते हैं इन अ व्हाइल जस्ट नाउ, ओके। नाउ लेट अस अगेन एक्सेस द काउंट एंड चेक, यहाँ पे देख सकते हो आपकी वन, यहाँ पे वर्ड्स चेंज हुआ है, मैंने इसके पहले जैसे बोला था वैसे फिर से करते हैं, अवेट x डॉट काउंट, ना फिर से y2 नंबर कर देंगे हम लोग, यप इट इज़ 1, यू कैन सी गाइस इट इज़ 1, तो वो फंक्शन सक्सेसफुली पास हो गया है, काउंट इंक्रीमेंट हुआ है। अभी और एक चीज़ करते हैं, वी नीड टू एक्सेस ये जो अकाउंट्स है ना, या सॉरी ये जो टू डूज है ना, ये टू डूज का ये काउंट, ये टू डूज का काउंट इंडेक्स पे ये आ रहा है कि नहीं, लेट अस चेक दैट, ओके, यप हियर अवेट x डॉट टू डूज एंड एज वो जो है ना नंबर अभी 1 है, तो लेट अस चेक फॉर 1, ओके नॉट दिस, माय बैड, ब्रैकेट्स गलत है, फिर से गलत, ओके एक सेकेंड, टू डूज और एक इशू हो गया था
कि हम लोग यहाँ पे पब्लिक नहीं कर दिए थे इसको, इसलिए एक्सेस नहीं कर पाए थे, अनडिफाइंड आ रहा था. वी नीड टू मेक दिस मैपिंग ऑल्सो पब्लिक टू व्यू इट. किसी भी चीज़ को हम लोग को व्यू करने के लिए पब्लिक करना पड़ेगा. स्ट्रक्ट इज़ नॉट लाइक दैट. स्ट्रक्ट नॉर्मली कर सकते हैं, बट वी नीड टू मेक दिस पब्लिक टू व्यू इट. तो हम इसको एक बार फिर से डिप्लॉय कर देंगे. हाँ, ट्रफल माइग्रेट रीसेट. यस, ट्रफल console. Okay, where x is equal to await to do list dot deployed. Okay, and await x dot add to do, and कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, complete your project. cool, ये हो गया है. then await x dot to do's and count 1 पे लिखते हैं. यप, that's done guys, completely. यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 इंडेक्स पे 1, ये बिग नंबर में है बट ये 1 है. मैंने आपको दिखाया था बिग नंबर 2 नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इन्फो देख सकते हो, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो 1 है यहाँ पे, इन्फो सीरियल नंबर. एंड दैट्स द फंक्शनल वर्किंग. हम लोग सॉलिडिटी में एक फंक्शन बना दिए. अब लेट अस सी हम इसको फ्रंट एंड से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके गाइस, तो इसको हम बंद कर देंगे अभी. ये इसको रहने दीजिए, इसको हल्का सा क्लोज कर देंगे. tab.js get basic. यप, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब चीज़ ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है. यहाँ पे डिफाइन ऐड, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ये सब सेट कर दिए. नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पे हम लोग गेट कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को अब यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज़ एन एसिंक्रोनस फंक्शन, मतलब हम लोग वेट कर रहे हो प्रॉमिस को रिजॉल्व होने के लिए. प्रॉमिसेस जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट है. हम लोग एसिंक अवेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो रिजॉल्व होने तक हम लोग वेट कर रहे हैं. ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बुला लिया है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने इधर सेट कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल है, पहले अनडिफाइंड था बट हम लोगों ने उसको ऑलरेडी सेट कर दिया. तो वी कैन एक्सेस दिस कॉन्ट्रैक्ट एनीवेयर इन द एप्लीकेशन. तो अब कैसे करें, अभी हम लोग करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में. मैंने जैसे बताया था इसके पहले, देयर इज अ थिंग नोन एज मेथड्स. वी विल एक्सेस द मेथड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड वी विल एक्सेस फर्स्टली द काउंट. await contract dot methods dot count, sorry not account, count. and इधर हम लोग इसको कॉल करेंगे. there are two methods you can use here, call and send. send में जनरली send हम लोग यूज करते हैं तो इधर लगता है यहाँ, और हम लोग जब कॉल यूज करते तो इतना नहीं लगता है. कॉल इज जस्ट टू व्यू समथिंग. सो हियर वी आर ओनली व्यूइंग द काउंट. सो हम लोग बस कॉल कर रहे हैं. और सेंड करते समय एटलीस्ट थोड़ा सा इतर लगता है, दैट इज द गैस फीस, बिकॉज वी नीड टू परफॉर्म समथिंग, वी नीड टू चेंज समथिंग इन द सॉलिडिटी कोड. जैसे हम लोग एक फंक्शन, हम लोग एक टू डू लिस्ट में एक टू डू ऐड कर रहे हैं. दैट इज व्हेन वी यूज सेंड, बट वी वांट टू जस्ट व्यू समथिंग, मतलब हम लोग को बस डेटा देखना है. तो दैट इज द पॉइंट व्हेन वी यूज कॉल. ओके, हम लोग इसलिए यहाँ पे पहले काउंट को चेक बुला के वी आर जस्ट चेकिंग की कॉल, मतलब चेक कर रहे हैं कितना है काउंट. इसको बस console लॉग कर देंगे, console.log await कॉल. ऐसा नहीं है, गलत है सिंटैक्स. यहाँ पे फिर से देन और कैच का ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग. देन कैच भी इस जावास्क्रिप्ट का लाइक एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. देन कैच, बस ये सब देन कैच, ट्राई कैच, आप लोग समझ रहे हैं ना. इट्स द सेम थिंग. वी आर जस्ट चेकिंग कि ये देन ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, इसके बाद क्या करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, कैच. अगर ये सब नहीं हो रहा है तो कैच करके एरर ये प्रिंट करेगा. देन वी विल पास अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट. यार ये रिजल्ट या जो भी रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, एंड वी विल जस्ट console.log द रिजल्ट हियर. एंड अगर एरर है यहाँ पे तो वी विल console.log द एरर. These are the two things. यहाँ पे हम लोगों ने काउंट को कॉल किया फ्रंट एंड से, देन वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट काउंट कितना है, देख सकते हो आप लोग भी.
यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने काउंट को प्रिंट कर दिया, इट इज़ 1 करेंटली, सिंपल एज दैट। तो आप लोग समझ सकते हो दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। हम लोगों ने सक्सेसफुली, छोटा सा चीज़ बट हम लोगों ने बैक सॉलिडिटी पार्ट और फ्रंट एंड पार्ट को कनेक्ट किया है। अभी हम और भी इस छोटा सा मॉड्यूल को लेट अस कंप्लीट इट फुल्ली। हम लोग एक टू डू को फ्रंट एंड से पास करके बैक एंड से फिर नीचे प्रिंट करेंगे, तो दैट विल बी कंप्लीशन ऑफ आवर मॉड्यूल। हम इस पार्ट को इसलिए कोड कर रहे, आई मीन कमेंट आउट कर रहे, because I will show you how you can actually pass data from front end and access it in the front end again। एक फॉर्म बना देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट लेके, जहाँ पे हम लोग को टू डू का डेटा हम बहुत ही ख़राब स्टाइलिंग दे के देंगे, तो बुरा मत मानिए, स्टाइलिंग हम आपके ऊपर छोड़। तो यहाँ पे हम लोग एक सबमिट बटन दे देंगे, बेसिक स्टाइल इनपुट टाइप टेक्स्ट सबमिट बटन, यूजुअल फॉर्म, बेसिक एकदम फॉर्म, एकदम सिंपल फॉर्म, कुछ स्टाइलिंग नहीं, ज़ीरो स्टाइलिंग। तो हम इसको यहाँ पे टाइप भी सबमिट दे देंगे, टाइप सबमिट है बेटर एक रहेगा, और एक इससे अच्छा है ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल सबमिट बोल के हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, अभी तक बना नहीं है, हैंडल सबमिट बनाएंगे, सो दैट जो फ्रंट एंड में जो बैक सॉलिडिटी पार्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया था ना, वो एक्सेस हो पाए। अभी तक हमने ये बनाया नहीं हैंडल सबमिट, तो एरर फेंक देगा हमको। अभी उसको कमेंट आउट करके रखते हैं जस्ट 2 मिनट के लिए। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, this is a simple submit button, here you will give the note and this is a submit button. Okay, cool. Now yes, here we have used this call, right? Now here we need to make a function, handle submit const handle submit. This is the second method which you will be learning. One is the call method, the other is the send method. ये दोनों में पूरा काम निपट जाएगा। सेंड मेथड के लिए थोड़ा सा गैस लगता है, बिकॉज यू नीड टू परफॉर्म एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन इन द सॉलिडिटी कोड, जहाँ पे तुम लोग को नया एक टू डू लिस्ट का आइटम बनाना पड़ता है। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट डे में पढ़ा था, इट रिक्वायर्स गैस, एज वी नीड टू पे दिस गैस टू द माइनर्स हु आर सिक्योरिंग द ब्लॉकचेन नेटवर्क बाय क्रिएटिंग ब्लॉक्स। ओके, तो हम लोग एक हैंडल सबमिट का फंक्शन बना देंगे, इसमें ये जो है इवेंट है, और यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बोल के, दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स। हम लोग डिफ़ॉल्ट कुछ भी जो होगा फॉर्म सबमिट होने पर उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, एंड वी आर एक्चुअली पासिंग समथिंग एल्स, वी आर क्रिएटिंग समथिंग एल्स। इसको भी एक एसिंक अवेट फंक्शन में कर देंगे। एवरीथिंग यू यूज हियर इज एसिंक अवेट, बिकॉज यू नीड टू वेट फॉर द कोड टू गेट एग्जीक्यूटेड और वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू लाइक प्रोसेस द कोड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी एसिंक अवेट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स डॉट, कौन सा मेथड, कौन सा फंक्शन पास करना है हमको जो सॉलिडिटी पार्ट में, एनी केसेस this one, right? Add to do. Just now we have accessed the count. Okay, now we need to pass the add to do function. Okay, add to do हम लोग ये कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं send। ये send मेथड के अंदर जो डालना है वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट वी आर यूजिंग द send मेथड। ये फिर से गलत सिंटैक्स है, ऐसा नहीं है। send एंड यहाँ पे फिर से डॉट देन यूज कर रहे हैं, एंड डॉट क्या चीज कर, तो यहाँ पे हम लोग डॉट देन में क्या करेंगे, ऐड टू डू के अंदर हम लोगों ने पास किया था ना, लाइक ऐड टू डू के अंदर थोड़ा सा कुछ पास किया था हम लोगों ने बैकएंड में। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन, yes, as we have learned used it yesterday, to handle forms in React there's an easy way to handle and submit forms. You can like define a use state, another use state where constant info and set info एक हम लोग डिफाइन कर देंगे, और यूज नॉट इफेक्ट यूज स्टेट हम इसको फिर से एम्प्टी दे देंगे।
और यहाँ पे हम लोग फॉर्म के इनपुट में भी हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू को दे देंगे इन्फो, बस क्योंकि फॉर्म पहले ब्लैंक रहेगा हमेशा। और जब ये फॉर्म चेंज होगा, ये हर फॉर्म का या पूरे एप्लीकेशन में हर फॉर्म का यही सिंटैक्स होगा। दैट्स वाई एक बार बता रहा हूँ आपको, हल्का सा एक बार में ऐसा थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग या कंफ्यूजिंग लगा तो यू कैन आस्क एनी डाउट राइट नाउ, और आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो वी विल हैव अ स्मॉल डाउट सेशन, यू कैन आस्क इट देयर। ऑन चेंज हम लोग सेट इन्फो एज द यहाँ पे भी ई वाला यूज होगा, इवेंट का टारगेट ही यूज़ करते हैं हम लोग। वी नीड टू सेट द इन्फो, सेट इन्फो जैसे हम लोगों ने कल देखा था यूज स्टेट का फंक्शन, यूज स्टेट का अदर पार्ट। वी आर चेंजिंग द वैल्यू इन्फो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, सो we are setting the info as e dot target dot value, and initially the info is info, and now we will pass this info here in this to do। cool, हम लोग इस info को जब ये change होगा क्लिक होने के बाद, सबमिट क्लिक होने के बाद यहाँ से सेंड कर रहे हैं, then we need to what we need to do, we can log the result, then result console dot log result, and again catch error console dot log error। सही है, तो इसको हम अनकमेंट आउट कर देंगे, आई अभी एरर नहीं आएगा। कहाँ पे ये 116 ऑन क्लिक हैंडल सबमिट, हाँ ये ऐसा नहीं होता है, इसका सिंटैक्स ये गलत है, तो ये सही है आई गेस। यप, दिस इज सही, इसका ऐसा सिंटैक्स है, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। यप, दिस इज द फॉर्म। ओके, यहाँ पे 1 है काउंट, अभी कुछ रैंडम जिबरिश लिख देंगे, सबमिट कर देंगे। फ्रॉम एड्रेस, यप, यहाँ पे एक छोटा सा एरर आया, फ्रॉम एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड। तो फ्रॉम एड्रेस जब हम सेंड करते समय यहाँ पे एक अंदर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा हमको, और फ्रॉम एड्रेस हम लोग को अपना अकाउंट जो कनेक्टेड है, ये जो हम लोग यहाँ पे अनडिफाइंड से लेके हम लोग फेच किए ना, वो अकाउंट ये करना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम एड्रेस वो सेट कर देंगे, देन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिबरिश, यप, दिस इज वर्किंग। द MetaMask prompts you to pay this much gas fees, क्योंकि it is a send transaction। when you confirm it, this transaction is completely successful guys। पेज रिफ्रेश करने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा। यप, 2। so यहाँ तक I guess everything is clear। we are using send method to perform a transaction, and we are using call method to access any value। now और एक पार्ट बाकी है इसका, we need to print all the to dos from the backend, that is also simple, वो भी सिखा दें।